it is to be the pioneers and achievers. ठीक है ठीक है Next rank holders for Fasita Ghosh, Sudiksha Gupta, Shashwat Jha, Samar Pratap Singh, Muskan Rathod, Amandeep Mandal, Nidhi Gupta and Komal Dikshit. और पीछे को बैठो पीछे को पीछे इसके पीछे एक इसके पीछे Stage तक आवाज नहीं आ रही success. I congratulate all the first rank holders. ठीक है बेटा यहाँ A group second rank holder Karma, Jia Daima, Rashi Bagla, Prachi Pramita Samal, Vikrant Neti and Shivani Singh. Nothing is impossible. The word itself says, I am possible. So a huge round of applause. Next group for second rank holders, Mridul Jain, Arth Sarkar, Harshit Agarwal and Kanika. पीछे रहो बेटा ठीक है यहाँ देखेंगे स्माइल बेटा Third rank holders, Arav Tyagi, Kanishka Sharma, Abhinav Srivastav, Devansh Maurya, Vani Singh, Deepika, Sulagna Behura, Harry Mittal. A huge round of applause. Great things never come from comfort zones. Action is the foundation key of success. Academic Awards, third rank, next Yadav, Mohammad Yasir, Yanshi Tanwar, Rudra Krishna Raghav, Rohit Singh, Apurv Saxena and Anushka. Congratulations all the proud parents and children. Work for the moment when you can finally say, I made it. A huge round of applause. Of class 10. Success is delivered to the deserving. And Nupur Rajput, second position Priyanshi Sharma and third position Bhumi Gupta. Congratulations to all the proud parents and children. Children, your sincere efforts deserve this success. All the best for your future. Manvi Maurya, Kanishka Sharma, Krishna Singh, Lucky Sharma, Amrita Chaurasia and Ayana. They participated in different events, slow competition, yoga, painting, dance and graffiti art. Congratulations all the children. Creativity is seeing the same thing but thinking differently. A huge round of applause. Vaishnavi Mishra, Muskan Rathod, Rashika Gupta, Abhinav Srivastav, Supriti Mandal, Beverly Pathak, Urmi Rao, Vanshika Jangir, Naina, Nandita Satyavola, Mohammad Ayan, Kaustav Kapoor, Dhani Vashne, Anushri, Aditri and Daksh. Congratulations all the proud parents and students. The future belongs to the competent. Get good, get better, be the best. Abhinav Singh, Pallavi, Kanishka Rawat, Adhyan, Kuldeep Daima, Kumud, Lalit, Kritika, Aditya Pawar, Mohammad Arham and Vikrant Mehti. और बेटा अंदर आओ थोड़ा यहाँ देखिए
always at practice. You pick them up at competitions. A huge round of applause. Rohit, Asta Mishra, Ritik, and for consolation prizes, Kritya Srivastava, Hiya Sharma, Tejas Sharma, and Sanjana Bisht. When talent doesn't work hard, a huge round of applause. यहाँ देख रहे हैं They all competed in painting, poet recitation competition, technoviz. 2 silver, 1 bronze. Kartike Mandal, 1 silver, and Anand Sharma, 1 bronze. Courage is not the absence of fear, but the triumph over it. A huge round of applause. आप अंदर आओ This sport requires practice and determination. Aman Shah, Ravindra Patel, Vikas Mishra, Anish Pratap Gautam, Yatesh Nagar, Tinu Patel, Akshay Vaishnav, Rahul, Rohan Kalas, Paramjeet, Ghosh Shukla, Dipanshu Daima, and Mol Yadav. I request Vikram sir and Patel sir to please come up on the stage. तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज. बहुत बड़ा मोमेंट है ये नेशनल. हमारे डिस्ट्रिक्ट विनर्स, क्लस्टर विनर्स और फिर अब नेशनल विनर्स. If you believe in your देखो Shwet Singh, congratulations. बेटे सामने Cash इधर prize of 100. बच्चा जब वो नर्सरी में एडमिट होता है, वो मेहनत करता है, वो ख्वाब देखता है, वो सपने देखता है कि एक दिन अगर मुझे ये अवार्ड मिला तो मैं कितना खुश होऊंगा और उससे ज़्यादा उसके पेरेंट्स कितने गौरवान्वित महसूस करेंगे. इस वर्ष हमें ये अनाउंस करते हुए बेहद खुशी है. इट इज़ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस बिकॉज शी इज़ माई स्टूडेंट. This year, the S.K. Sharma Memorial Award for the Student of the Year goes to Neeti Mishra of Class 12. May I please request Neeti Mishra's parents to come up. These proud parents, come on the stage. Neeti Mishra's parents, come on the stage.
और पास में, और पास में, हाँ, बस हम पास हैं। पास ही रहेंगे। ठीक है। में जाओ, तुम सबके सब सामने आ जाओ, दौड़ के एक दो। माता की। प्यारे बच्चों, इस भिवाड़ी की वीर भूमि में विराजमान मेरे खून के रिश्ते के भाई और बहनों और खिलते हुए फूल जैसे प्यारे बच्चों को इस सिपाही का जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, मौत तो दिल्ली मरते यारो, मौत तो दिल्ली मरते यारो, मौत ऐसी मरो जिसको जमाना याद करे यारो, जिसको जमाना याद करे यारो। भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको क्यों याद करते हैं? अभी आपने देखा होगा जो बच्चे टॉप आए उनको सब देख रहे थे, जो अलग हटके काम करता है उसको याद करते हैं। लीक दो ही चलते हैं, लीक सभी चलते हैं, लीक छोड़ के दो ही चलते हैं, एक शूरवीर और एक बुद्धिमान। तो स्कूल के अंदर विद्या का विकास होता है, यहाँ आपको जो चीज सिखाई जाएगी वो पूरी फॉर लाइफ काम आओगी। मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूं कि आपको देखने के लिए इतनी गोली लगने के बाद फिर भी जिंदा हूं। मेरे प्यारे बच्चों की इस बॉडी जो आपके सामने है ना, 6 फुट की दीवार, इसके अंदर बहुत गोली लगी हुई है। मैं खोल के दिखाऊंगा कहाँ लगी, कैसे लगी और ये लगने के बाद में मैंने क्या किया। हाँ, अभी सही हो, क्योंकि मेरा एक उसूल है कि खाओ खूब छको मत, बोलो खूब बको मत, चालो खूब थको मत और देखो खूब थको मत। अधिक धन चाहिए तो धर्म करो, अधिक धन चाहिए तो धर्म करो, और मुक्ति चाहिए तो बजराम, और जेल चाहे तो दो टाइट में तुरंत बड़े हो काम। अभी तत्काल ही पुलिस आ जाएगी भिवाड़ी से। देखो, हर जीव की 3-4 इच्छा होती है। सबसे पहले इच्छा होती है कि पूरे ब्रह्मांड में रावण इतना विद्वान मैं हूं। रावण से आज तक सतयुग, द्वापर, कलयुग और त्रेता, ये सारे युग बीत चुके हैं, कलयुग चल रहा है, तो आज तक ऐसा विद्वान नहीं हुआ जो धरती के ऊपर यानी पूरी पृथ्वी पर रावण जैसा विद्वान नहीं था, जिसको दशानंद कहते थे। दशानंद का मतलब 10 सिर नहीं बच्चों, आप दिमाग लगाओ। इस कलयुग में कि 10 सिर होते तो 10 में 2 रोटी खाता, कितनी खाता? 20। फिर टॉयलेट कैसे जाता? एक मशीन से टॉयलेट, प्रॉब्लम नहीं हो जाती। तो वो दशानंद का मतलब क्या होता है? 10 दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करना, यानी इस पूरी ब्रह्मांड का उसको ज्ञान था। क्या उसके घर में देव देवता झाड़ू पोछा करते थे, और जब सम आया तो बांदरान छेत्या। बांदर समझते हो ना? मेरी अगर भाषा नहीं समझती है तो हाथ खड़ा कर देना। समझते हो सभी? क्योंकि मुझे अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग है, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं आपकी तरह। मैं सिर्फ KKNP हूं। KKNP का मतलब जानते हो? मैं पहली डिग्री मैंने ली थी, लास्ट भी मैंने ली थी, मैं दूसरे को डिग्री नहीं देनी थी। KKNP का मतलब अभी बताता हूं आपको खुल के। KKNP, खींच खांच के नॉन मैट्रिक पास। लेकिन मेरे फील्ड का मास्टर था ना, 16 साल 2 महीने 2 दिन 2 घंटे 20 मिनट 33 सेकंड का फौज में भर्ती होगा था। है कितने का कोई बता सकता है? हर बच्चे की इच्छा होती है कि मैं सबसे बुद्धिमान बनूं, दूसरी इच्छा होती है कि सबसे ताकतवर बनूं, और तीसरी इच्छा होती है कि सबसे बड़ा धनवान बनूं। ये 3 इच्छा होती है बच्चों। चौथी इच्छा तो मेरे को बता देना, कल नवलगढ़ की मीटिंग में बता दूंगा। 3 इच्छा होती है ना, चौथी नहीं होती। और 3 तरीके से पाप होता है। हे मनुष्य, अगर आपको दिव्य शक्ति प्राप्त करनी हो तो पाप 3
कदापि मत करो आप। तो आप 3 तरीके से होता है, सबसे पहले नजर से, दूसरा जुबान से और तीसरा शरीर से। कोई चौथा तरीका हो तो फिर बता देना। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान की धरती को भारत माता कहते हैं ना, है? हाँ क्यों नहीं बढ़ते? हाँ अब के तो कुछ करंट आया। मेरे बच्चों, हिंदुस्तान की धरती को भारत माता कहते हैं, अमेरिका को चाचा कहते हैं नहीं, और चाइना को बुआजी कहते हैं, पाकिस्तान को साला कहते हैं, पाकिस्तान को साला पक्का कहते हैं। पूछो क्यों? बोले सारे पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। बोला सर्जिकल तो हम करते, वो नहीं करते। बोलो कारगिल में अटैक कर दिया साले ने, 71 में कर दिया, 65 में कराया था, 48 में। हमारे पाकिस्तान से कितने युद्ध हुए? 4, और 4 में उसका मुंह फोड़ा जचा के ने। वो जैसे ऊपर मुंह करता है और उसका प्रापड़ उसका मुंह कर दी। और अब की बार करेगा ना, अब की बार तो उसके कपड़े भी काट लेंगे हम, कंप्लीट नंगा करके छोड़ेंगे। क्यों? अब की बार हमारा चौकीदार बड़ा चौकीदार है, अपना चौकीदार थोड़ा समझदार है ना? जानते हो चौकीदार कौन है? एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं आज कोट दौसा में, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा कमांडर हो, घर का हो या बाहर का हो, मेरा खुद का एक डायलॉग है, मैं आर्मी का इंस्ट्रक्टर हूं, यानी कि जितने भी प्रकार के हथियार हैं उनको आंखों के पट्टी बांधने के बाद खोलना, जोड़ना, फायर करने का तरीका सिखा सकता हूं मैं। यानी रात को अंधेरे में भी मुझे LMG दी जाए तो 100 मीटर के ऊपर आप ऐसी आवाज कर देना, वहां गोली ठोक दूंगा। शब्द वेदी जो किसके पास में जा, राजा दशरथ के पास में। और मेरे को LMG के अंदर 100 मीटर पर मजा, अंधेरी रात में आप आवाज कर देना तो उसी इलाके में पहली बात तो हिट, और हिट नहीं तो पड़ोस में तो लगेगी, दूसरी हिट हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करना मैंने सीखा है। हर आदमी का एक चीज में जुनून होता है। जैसे ये खिलाड़ी है, ये पढ़ाई में टॉपर नहीं है, कोई है इनमें एक आधा नहीं है ना? क्यों? इनको सिर्फ फुटबॉल की शक्ल दिखाई देती है, किताब थोड़ी कम। तो ये नेशनल तक गए। नेशनल के अंदर कितनी जनसंख्या भारत की? 125 करोड़ से भी ऊपर है, 140 है। उसके अंदर अपनी एज के अंदर ये नेशनल के अंदर फाइनल में पहुंचती है टीम, सेमीफाइनल पहुंचती है, तो भी बहुत बड़ी बात है। वो बात नहीं बेटा, ताली कम बजाओ। ताली नेताओं को और गाने वालों को अच्छी लगती है, फौजी को तो आशीर्वाद ही अच्छा है। ताली में समय मत लो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देर बोलूंगा। कितनी देर बोलूं? 1 घंटे। 1 घंटे वाला हाथ खड़ा कर दो, आधी घंटा, 2 घंटे। शाबाश। लड़ाई तो मैंने कई देर लड़ी थी और कई जगह लड़ी थी। देखो 48 तो मैंने एक ही समय मारे थे, कारगिल में 48 मारे थे, उससे पहले श्रीलंका में मारे थे मैंने, और कंबोडिया में मारे थे, कांगो में मारे थे, आसाम में मारे थे, कुपवाड़ा में मारे थे। हजरत बल के अंदर 144 उग्रवादी का कमांडर था, उसका एक ही गोली ठोकी थी यहाँ सिर में, और 144 सरेंडर हो गए थे, और उनको फिर उगाड़ा करके पीटा हमारी फौज ने। देखो बेटा, सतयुग में भी उग्रवादी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, और कलयुग में तो ओपन है। उग्रवादी का मतलब राक्षस और देवता। जो राक्षस होते वो उग्रवादी होते, और जो देवता होते वो अच्छे इंसान होते। क्योंकि उग्रवादी बनना आसान तरीका है, और इंसान बनना बड़ा मुश्किल है मेरे बच्चों। यहाँ कितने भी मेडल ले लेना आप, अगर आप इंसान नहीं बने तो बेकार है। आपकी स्कूल
प्रेसिडेंसी मैंने अंग्रेजी आती नहीं ना, क्या नाम है? प्रेसिडेंसी। अच्छा अच्छा, प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल है भिवाड़ी, आपकी प्रेसिडेंसी स्कूल है। इसके अंदर आप स्टूडेंट ना बढ़ करके ने और आप एक अच्छे इंसान बन के यहाँ से निकलते हो ना, तो ये जो बैठी हुई है ना आपके सामने खड़ी हुई है गुरु, आपके गुरु, देखो ये सारी अध्यापिका टीचर्स है, आपके गुरु परम गुरु यही है। इन्होंने तुम्हारे को शिक्षा दे दी, उसको इस खोपड़ी में बैठा लिया ना, इसमें एक जीबी होती है, इसके अंदर जो वो एक सिम होती है वो अनंत जीबी की होती है, अनलिमिटेड होती है, उसमें कितना ही डाटा फीड कर सकते हैं आप। लेकिन इंसानियत का डाटा फीड करो। ये किसी की शादी है क्या सर? है गया काम से को मेरी तरह कोई और भी शादी हो जाती है तो फिर थोड़ी सी तो बर्बादी होती है क्या? नहीं, 3 चीज पक्का मिलती है इंसान को, जीवन मरण मरण और पैदा होना, शादी होना और मरना। ये 3 काम नहीं करता वो इंसान नहीं होता, फिर वो जानवर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वो दास्तान सुनाऊंगा आज जो आपने YouTube पे मेरे बहुत वीडियो देखे हैं। किस किस ने देखे? अच्छा, बहुत कम आदमी। YouTube पे, गूगल पे दिगेंद्र कुमार सर्च करोगे ना, दिगेंद्र कुमार, DIGENDRA, दिगेंद्र कुमार, तो वो दाढ़ी वाली फोटो आओगी। ये तो अभी की ताजा है, ये उस टाइम की है, लड़ाई के बाद की। और वो मैडम थोड़ा सा उस महल को दिखाओ जो पहले काफी सुंदर था। हाँ दिखा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलता है। नहीं, हाँ निकालो वो फोटो। आगे बेटा, हाँ भाई, मैं बेस्ट कमांडो ऑफ इंडियन आर्मी रहा हूँ, यानी अपनी भारतीय सेना कितनी है? 14 लाख, जिसमें हाँ भले इस महल को देखने से पता चलता है ये खंडार पहले काफी सुंदर था, है? मैं भी चीकना था ना। तुम सोच रहे हो कि हम भी चीकने थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम मेहनत करना जानते थे। बेस्ट कमांडो का जो मेडल लगे हुए है ना मेरे सीने पे, और फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द कारगिल वार की पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा इस हाथ में था। ये वो हाथ है। अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं मैं कि मेरा पहला तिरंगा झंडा कारगिल युद्ध में गाड़ने का मौका मिला। और वो भी मैंने कहाँ गाड़ा था आपको पता है? हाँ, डॉक्टर साहब को पता है, क्योंकि ये कई ऑपरेशन कर चुके हैं, कई करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने झंडा गाड़ा, वो वहां पहाड़ी थी और पहाड़ी में झंडा गड़ नहीं सकता, तो उसके लिए खड्डा चाहिए ना। तो पहले मेजर अनवर खान की मुंडी काटी, फिर उसमें खून निकल गया से, फिर वो खाली जगह बची, उसी में गाड़ दिया। बढ़िया जगह थी ना, ताकि पाकिस्तान को आने वाले 50-100 साल तक याद रहे कि हिंदुस्तानी फौजी बुरी हालत करते हैं। हम घसीटते नहीं, पीटते भी बहुत बुरा है, और पीटने के बाद में मारते भी बहुत बुरा है। हम भारत माँ के बेटे हैं, इतने नालायक तो नहीं कि उनको फ्री में छोड़ दें, लेकिन कुछ हमारे देश के नेता इतने नालायक होते हैं जो ताज पर हमला कर देते हैं, कोई उड़ी पे कहीं भी कर देते, कहीं हमला कर देते, उनको मेहमानों की तरह खातिर करते हैं। लेकिन मैंने आज तक 146 टपकाए। कितने? मेरे सीओ साहब ने बोला दिगेंद्र तेरा कोर्ट मार्शल करूंगा, वो कागजों में होता है, मैं पण ठोकूंगा। मैंने जिंदा उग्रवादी पकड़ लिया और अपने कमांडर को लाके दे दिया। फिर बोला अभी दिगेंद्र इसको पुलिस को देना। मैं को ठीक है सर, मैं छोड़ जाऊंगा पुलिस में। तो बोले ना तू नहीं जाएगा। मैं को सर मैं रियल टीम छोड़ जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है ले जा। रास्ते में उसको गाड़ी में कुदाया और धड़ गोली मारी। मैं को सर वो भाज के जा रहा था, मैं क्या करूं? बोले मेरे को पहले ही पता था, दुश्मन को देखते ही मार देना चाहिए, बुराई को सामने देखते उस पर एक्शन कर लेना चाहिए।
बेटे जिंदगी आई है, इस पर नाम लिखाना है नहीं भारत माँ के इतिहास में, तो ऐसा कर्म करो तो तुम्हारे को याद करे दुनिया। तुम्हारे आज मैं 1000 साल बाद में भी ये जो फोटो लिए ना आपने मेरे साथ में, कई बच्चों ने तुम्हें लिए, 1000 साल बाद में भी ये फोटो वैसी की वैसी बरकरार रहेगी कि दिगेंद्र कुमार नाम का एक सैनिक हमारी स्कूल में, इसी स्कूल में आया था 1000 साल पहले। क्यों? वीरों की गाथा कभी कम नहीं पड़ती बच्चों, वीर कभी मरते नहीं। वीर हो गया वसुंधरा, इस धरती का नाम वसुंधरा है, इसमें वीर हर चीज का स्वाद ले सकता है। कायर सुबह उठते ही मर जाता है। जैसे आपका एग्जाम आ रहा है, मम्मी बोली पहले बेटा जल्दी उठ पेपर है, बोले अरे बाप रे मम्मी क्या करे, तो वहीं मर गए। अब बोले कोई बात ना मम्मी देखेंगे, 100 में 100 लेंगे। जैसे 3-4 बच्चों ने लिया नंबर 100 इसलिए होते हैं लेने के लिए। अगर एक डॉक्टर 100% क्वालिफाइड नहीं होता ऑपरेशन के दौरान तो वो पेशेंट मरेगा। 60% वाला डॉक्टर है कोई और किडनी का किसी का, दिल का किसी ऑपरेशन कर रहा है, तो 60% वाला तो 60% इलाज करेगा ना, 40 तो मरना ही है। तो देश का फौजी जो होता है, फौजी जो होता है वो दुश्मन का 100% इलाज करता है। और उसमें मैं 99 का टॉपर था, दुश्मन को देखा और उसके सिर में गोली मारता था और कहीं नहीं मारता था। सिर में मारने से क्या होता है कि अगला मेरे पे फायर नहीं कर सकता दोबारा, एक फायदा। दूसरा, एक ही गोली से दुश्मन खत्म। अगर यहाँ 5-7 गोली ठोकेंगे तो वो फायर करता रहेगा और वो मुझे मार भी सकता है। इसलिए सबसे पहले शिस्त लो यहाँ पर, यहाँ ट्रांसमीटर के तीनों फेस यहाँ होते हैं, बड़ा दे उड़ाओ तो पूरा फिटरी उठ जाएगा। और ये जितना सिस्टम है ना ये सब काम करना छोड़ देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा सौभाग्य है आपको देखने के लिए मौका मिला। तुम 99 में पैदा तो नहीं हुए थे, लेकिन मुझे एक ही नहीं पूरा विश्वास है और उसके तुम कारगिल लड़ाई में थे, तुम्हें 5-7-10 तो पैदा हुए होंगे उसमें। कारगिल वाले होगी कोई ना कोई आत्मा तो यही होगी जो मेरी आवाज सुन रही है, लेकिन वो समझ नहीं सकता क्योंकि राम रूपे की कारीगर ने, राम रूपे के कारीगर ने अजब रेल तैयार करी। ये राम रूप कारीगर है ना, उसने ये अजब ही रेल तैयार करी है। राम रूपे के कारीगर ने अजब रेल तैयार करी, प्राण पसंजर तेज तरीका चलन की रफ्तार करी। नाड़ी शब्द की सीटी जब सांस का पंखा हिलता है और गाड़ी वाला गर्म मसाला सर्वधात का डलता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, करनी के डब्बे बदले जाते लेकिन इंजन एक ही चलता है। इंजन का नाम बता सकता है कोई बच्चा? इसका इंजन का क्या नाम है? जीवात्मा। वो एक ही होता है, वो कभी मरती नहीं है, कभी जलती नहीं है, वो दोबारा पैदा हो जाती है। अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे दोबारा जन्म हो सकता है तुम्हारा, और बहुत अच्छा करोगे तो मोक्ष को प्राप्ति भी हो सकती है। मोक्ष किसको कहते हैं? जो जीवन मरण से छुटकारा मिल जाता है उसको मोक्ष कहते हैं। भगवान शिव मोक्ष प्राप्त है। बहुत ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्हें 80-80 हजार वर्ष तपस्या करी थी। आप बोलोगे कि अंकल आप तो झूठ बोले, 80,000 वर्ष तो उम्र ही नहीं होती। सतयुग में 1,00,000 वर्ष उम्र होती है एक मनुष्य की, हाइट 32 फुट है। और अभी ऐसी चलती रहे ना तो लास्ट में कलयुग लास्ट आओगे ना तो 5-4 एक आंगड़ के रह जाएंगे आदमी, मूसा की तरह ऐसे पूछ लाते रहेंगे, कुछ नहीं। और ये पिज्जा बर्गर ये ऐसे ही इंजेक्शन वाली सब्जी खाते रहे ना तो 50-1 साल में गुजर जाओगे सारे के सारे। क्योंकि डॉक्टर साहब को पता, पहले हमारी टाइम में पूरे इलाके में एक हॉस्पिटल होता था और अब हजारों हॉस्पिटल हो गए और वो भी फुल मिलते हैं। क्यों? खान पीन की गड़बड़ है। देसी खाओ, देसी खाओ, देसी पियो। देसी वो मत पी लेना ठेकाली के, तो कहते देसी ठेकाली के पीछे चले जाओ। वो भगवान शिव को ही बहुत है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जहर किसने पिया था? शिव जी ने। ये भी बेटा जहर ही है। मैं फौज में नौकरी कर, पूरी नौकरी कराया,
और पूरी नौकरी करने के बाद मैंने कभी फौज में तो मेरे को 10-12 बोतल लागू है, लेकिन मैं उनका ढक्कन तक नहीं देखा अभी तक, उसमें स्वाद कैसा आता है। इसलिए मैं अलग हूँ फौजियों से। वहाँ हमारे फौजी क्या सुनते थे, गाना, रागनी, भजन, कीर्तन ऐसे सुनते थे। वहाँ रेडियो होता था उस टाइम पे, आजकल तो मोबाइल होगा। मैं रामायण गुटका, कुरान, बाइबिल, तहमील, इनके छोटे छोटे गुटके और पोस्ट के ऊपर पढ़ता रहता था। कुरान मैंने 3 बार पढ़ी हुई है। कुरान में एक जगह लिखा है खुदा सब पे दयालु है, और खुदा ने ही पैगंबर को पैदा किया और पैगंबर ने ही कुरान को लिखा हुआ, तो मुझको दयालु कैसे हो सकता है? खुदा सब पे दयालु कैसे हो सकता है? इसका मतलब किसी मनुष्य की बनाई हुई है। खुदा बनाता तो गीता भी बनाता। रामायण क्यों बनाई? रामायण बनाई भगवान कृष्ण ने, और उनका खुदा ने बना दी कुरान। ये गलत है। आज देश के अंदर इतना पाखंड हो रहा है जातिवाद पे, धर्मवाद पे। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, समय आओगा अपना आप ही कर देगा सब कुछ। अभी बताता हूँ आपको कि मैं 85 में भर्ती हुआ राजरेव दिल्ली सेंटर। वहाँ मैं बेस्ट स्टूडेंट रहा। क्या रहा? बेस्ट स्टूडेंट रहने के बाद में मेरी बटालियन 2 राजरेव वो रिजौरी के पास में थी। वहाँ गया, वहाँ जाते मैं वहाँ गया जिस जगह पे मेरे पिताजी के गोली लगी थी। मेरे पापा 1948 में 11 गोली लगी थी मेरे पापा को। उसके बाद में मेरे पापा कैसे बच गया बताने, मेरे को पैदा करने के लिए बचा था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी थी, तो वो बच गए। और 30 जनवरी 1950 को उनको सेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया। 1969 को मेरे को पैदा कर दिया पापा ने। और उनकी 71 की लड़ाई हो रही थी जब मैं पापा की गोली पकड़ ली 2 साल का। ऐसे पापा बोलता है कि बेटा ये दुश्मन की गोली है। मैं को गोली क्या होती है, दुश्मन क्या होता है? बोले जब फौज में जाएगा जब पता चलेगा। उसी दिन ही खोपड़ी में होगा कि गोली भी होती है, दुश्मन भी होता है। इसके अलावा कुछ नहीं सीखा। और सेना में गया, 16 साल का भर्ती हुआ, और 17 साल कुछ दिन का था तो मैं एक बम पोस्ट था उसके ऊपर पोस्टिंग गया। और वहाँ का कमांडर बोले दिगेंद्र ये सामने दुश्मन है, और यहाँ से कोई भी आदमी कोई जानवर आता है तो उसको गोली मार देना। वो पक्का? बोले हाँ। तो उनका एक बकरा आगा, मैं बोला सर बकरा आगा गोली मार दूं? बोले शेर है तो पकड़ के लिया, गोली मत मारे। अब मेरे को उस कमांडर ने, उसने तो मजाक किया था, और मैं दर राइफल और ऐसे नाले नाले गया और दुश्मन का पोस्ट के नीचे जा करके वो बकरा की टेटुआ पकड़ के गेर ऊपर और दौड़ के पोस्ट पे ले रहा था, तो उन्होंने फायर खोला, मेरे को फायर खोला। वो जो हमारा कमांडर था वो बोलता आराम बोले बेवकूफ है क्या कर रहा? मैं तो मजाक कर रहा था। मगर सर मैं फौजी आदमी, आदेश पूरा मानता हूँ, मजाक करोगे तो भी मानूंगा। अरे बोले मेरा बाप तू कहाँ से आया? तो वो बकरा उठा लिया, उन्होंने ऊपर फायर खोल दिया हमारे पोस्ट पर धड़ाधड़। तो हमारे वाले तो बगैर ऑर्डर के फायर नहीं कर सकते। मैं कहा सर आपने क्यों नहीं करते फायर? बोले तेरा कोर्ट मार्शल होना, तू कर ले। वो कर लूँ? बोले हाँ ठीक है। वो फिर ऑर्डर मिल गया, मैंने LMG ली और दुश्मन के पोस्ट पर फायर चोरी करा। 3 ठोके। कितने? 3 पाकिस्तानी मारते, उन्होंने सफेद झंडा निकाल दिया। अरे हमारे 3 आदमी मार दिए साथियों, सीज फायर। तो उन्हें हमारी बटालियन नहीं थी, वहाँ दूसरी 18 मद्रास में भेजते हम। उसका CO साहब आया और उसका आते ही हमारे जो सुबह था बोले सर ये सारी गड़बड़ दिगेंद्र ने करी है। बोले यार ये तो नया रिक्रूट है, नया बच्चा है, क्या करा बेटा तूने? मैं को सर ये पाकिस्तान का बकरा आ रहा था यहाँ और इसको बार बार आवाज दे रहा, तो पाकिस्तानी मेरे को ये बोले कि बोलो एक बाप की औलाद है तो उठा के दिखा। तो मैं को सर मैं एक का ही था, इनका पता नहीं था। तो मैंने बकरा को उठा लिया। बोले शाबाश बेटे। फिर मैं को वो फायर कर रहे थे, इधर मुझको अपनी फौज को आदेश नहीं मिला, फिर मैंने प्रैक्टिस एनिमेशन फायर कर दिया। बोले शाबाश गुड। और मैं को सर बोले उनके तो 3 आदमी मर गए। मैं को उनके मरेंगे मैं क्या करूं? तो उसके बाद में पहले 3 वहां ठोके लाइफ में, जब दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। तो उसके बाद मेरे को पोस्ट से हटा दिया गया, तो दुश्मन देखते ही ठोकता है।
उसके बाद मैं श्रीलंका गया दोस्तों। उससे पहले मेरे को कमांडो कोर्स पे भेज दिया, तो मैं कमांडो में बस स्टूडेंट रहा, कमांडो बस स्टूडेंट। फिर श्रीलंका के अंदर हमारी कंपनी गई थी, वहां के भेजा गया। श्रीलंका में गया तो बोले भाई कमांडो कोर्स वाला कौन है जवान? मगर यस सर। बोले क्या ग्रेडिंग है? मगो QI बस स्टूडेंट, बेस्ट कमांडो टैगर। बोले हाँ बेस्ट कमांडो टैगर है? मगो हाँ। बोले जनरल साहब का बॉडीगार्ड जाना है तेरे, जनरल कलकट साहब का। मैं चले जाऊंगा। उसके बाद वहां गया, मैंने 20 दिन ड्यूटी करी। एक दिन क्या हुआ कि एक पुड़िया से ऐसे जा रहा था, नीचे उग्रवादी ने ऐसे ग्रेनेड फेंका और उसको कैच कराया मैंने। वो फेंकने वाला था ना, उसी को वो ऐसे फेंका, मैंने उसको कैच कराया और उसी को ठोक दिया। उसके यहाँ लगी, यहाँ लगते ही वो बड़ा दे फटिया, मैं गाड़ी में लेट गया। ओपन जीप थी हमारी और उसकी मुंडी फट गई, वो तड़ देश खत्म। अब थोड़ी दूर आगे गए तो जनरल साहब ने गाड़ी रोकी, रोकते बोले अरे वो लड़का कौन सा था जिसने उग्रवादी का ग्रेनेड उग्रवादी को ठोक दिया? बोले सर ये अपना राइफलमैन दिगेंद्र, कमांडो दिगेंद्र। बोले तो दिगेंद्र नहीं है तो कोबरा है। मैं को यार कोई बड़ाई मेडल है कोबरा, मुझे नहीं पता मालूम था कि कोबरा किसे कहते हैं, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैं तो आपको पता ही KKNP था, तो कोबरा की स्पेलिंग भी नहीं जानता था, कोबरा के बारे में भी नहीं जानता था। मैं अपने उस्ताद को पूछा, वो सर कोबरा क्या होता है? बोले तुझे नहीं पता? मुझे नहीं। बोले कोबरा वो होता है जहरीला नाग जिसका वसूल होता है फाइट एंड डेथ, तेरा वसूल था अटैक एंड फिनिश। हाँ मुझे फिर तो ठीक है। तो उस दिन मेरा पहला नाम कोबरा पड़ा था भारतीय सेना में। उसके बाद में श्रीलंका के अंदर हमारे 36 कमांडो को 72 घंटे से घेर रखा था LTT ने। तो वहां अन्वेषण हथियार खत्म हो चुका था, एक एक गोली बची थी। तो वहां पूरी श्रीलंका में तहलका मच गया। बोले कोई ऐसा कमांडो है जो इनको अन्वेषण पहुंचा दे? मैं को सर मैं पहुंचा दूंगा। बोले कैसे? मैं ये नाला पानी का बह रहा है, इस पानी के नाले के अंदर जा करके और ट्यूब बांध करके अन्वेषण हथियार लेकर के, और ऐसे ऊपर ये गोल गिंडी टाइप की आती है ना जो अपने कूलर में लगती है, ऐसे इसमें छेद काट के 4-5 छेद काट के लड़की मुंह में ली और अंदर अंदर तिरता तिरता चले जाऊंगा। बोले शाबाश, करके दिखा। वो ये लो। बोले ओके। तो मेरे पास 3600 गोली और 36 बिस्कुट पार्ले जी वो ले करके और वहां गया। तो वहां कमांडर वो ऐसा ऑपरेशन था ट्रिंकोमली और बबूनिया के जंगल में। वो जगह आज भी याद है मेरे को। जाफना से आगे जाते हैं ट्रिंकोमली, बबूनिया और कई जगह है, वो नाम याद है। तो ट्रिंकोमली के जंगल में गए हम। तो नहीं वो तो ऐसे ही बोल रही थी बेटा मेरी तरफ देखो। नहीं वो क्या किया, यहाँ लिखा हुआ था भिवाड़ी में, वो दिल्ली की तरफ रोड जा रहा था ना, वहां लिखा हुआ था पलट मेरी जान ध्यान किधर है, ध्यान किधर है? प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल इधर है। मैं अच्छा बढ़िया भाई, नहीं समझे? पलट मेरी जान ध्यान किधर है, ध्यान किधर है? तुम्हारी स्कूल इधर है। समझ गए? यह अभी बनाया डायलॉग। तो क्या होता है बच्चों, वहां पर गया और वहां 37 को ठोका। कितने को? 37 उग्रवादियों को। ऐसे एक पेट में था, रात का अंधेरा और बिजली चमके, बारिश हो रही थी, और उसके अंदर गया और उनको मतलब ग्रेनेड ठोका एक टेंट में। उसको अन्वेषण डैम था वो बर्बाद किया। फिर वो बैंकरों से बाहर निकले तो अपना शीश तल्यों पेट पर बैठा हुआ और ठक मारू, फिर बंद। फिर मेरे साथी दूसरी साइड से धावा बोलिया, तो 36 थे वो, तो उन्होंने भी मारे और मैंने एक लान मारे, इतने 37। वहां मुझे मेडल नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया वो मुझे नहीं पता। मेडल के लिए मैं ना लड़ाई लड़ी और ना लड़ूंगा। और आपको भी फर्स्ट होने के लिए पढ़ाई नहीं करनी, मेडल होने के लिए किसी को हरा के मेडल नहीं लेना। गेम का एक वसूल है, अपना पूरा दिखाओ, बाद में जो मिलता है उस पर सब्र करो। ठीक है? तो वहां ठोके। उसके बाद में मेरे को वापिस भेजा गया। तो श्रीनगर मेरी ड्यूटी थी। वहां जब कश्मीरी पंडितों को दौड़ दौड़ के कश्मीर से भागे वापिस जम्मू आ रहे थे, उस जगह पे मेरी ड्यूटी थी। मैंने बहुत पंडितों को हाथ जोड़ा, मुझको रुक जाओ, कोई नहीं रुका।
हमारे को मार देंगे हम जाएंगे। और बात भी सही थी। वहां पर एक बार क्या हुआ कि एक कश्मीरी लड़की को बिल्कुल नग्न करके ने ऐसे पेट के ऊपर कील ठोक के ने और ये लिख दिया कि हिंदुस्तानी काफरो तुम्हारी बहन बेटी की यही हालत करेंगे, नहीं तो यहाँ से कश्मीर को खाली कर दो। उस टाइम पर रात को मैंने खाना नहीं खाया और रात रात चक्कर काटता रहा। एक वहां पर एक आदमी को पकड़ा, वो बोले 3000 रुपया दूंगा, ये जो लड़की को मारा है ना उनका मैं एड्रेस बता सकता हूँ, मुझे जल्दी बता। तो उन्होंने 3000 रुपया दिया। मैं उसको उसने बताया तो वो 6 उग्रवादी है, 6 को रात को जा करके ने और धड़क धड़क 6 गोली सिर में ठोकी, 6 का हथियार लिया वापिस आ। उसके बाद में 93 में 94 में फिर कुपवाड़ा गया। वहां पे बहुत ज्यादा उग्रवादी आते थे उस टाइम पे। हमारा सीओ साहब बोलता था, कर्नल वीरेंद्र सिंह ये बोलता था, बोले एक उग्रवादी की एक बोतल मिलेगी। मैं बोले सर मैं पीता नहीं, मुझे क्या मिलेगा? बोले तुझे 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। मगो फिर तो मगो मैं 12 महीने की थारी काटूंगा। बोले नहीं तू एक उग्रवादी माँ एक छुट्टी मिलेगी। मैं 94 के अंदर मेरे को वहाँ काफी उग्रवादी मारा। उसके बाद मेरे को मानेसर यहीं कमांडो में भेजा गया। यहाँ कमांडो के अंदर गया, फिर यहाँ से 94 के अंदर हजरतबल में गया। वहाँ 144 उनका कमांडर था, उसमें मैंने PSC गन लगाई और हजरतबल के ऐसे झांकी में लगा के मैं को सर इस झांकी में मेरे को फायर करना है। बोले हाँ। तो बोले इसमें अगर कोई उग्रवादी बाहर मुंह काटता उसके गोली ठोकना। मैं को सर निकाल रहा है। बोले ठोकता क्यों नहीं बेवकूफ? और मैंने 10 ठोकी, उसके सिर में लागी, वो 144 सिलेंडर हो गई और हमें वापिस मानेसर आ गई। उसके बाद में 99 में फिर हमारी यूनिट कुपवाड़ा सोपोर में गई और वहाँ मैंने 4 उग्रवादी दौड़ा के मारे। 13 मई को पूरी वेलिम तेल का हो गया, कोबरा दोबारा आ गया। कोबरा वायरलेस सेट पर सभी को मेरा नाम है, पूरी भारतीय सेना कोबरा के नाम से जानती है, दिगेंद्र के नाम से बहुत कम जानते हैं। बोले यार ये वही कोबरा है जो दौड़ा के मारता है। और तुम्हारा आशीर्वाद था मेरे बच्चों कि वहां मैंने बहुत उग्रवादी ठोके। उसके बाद में हमारी बटालियन जब कारगिल में युद्ध छिड़ चुका था तो एक तोलोलिंग पहाड़ी थी जिस पर भारतीय सेना ने 3 हमले किए थे। कितने किए थे? एक बटालियन के 18 बेटे, एक के 22 और एक के 28 शहीद हो गए और डेड बॉडी भी नहीं उठाने दे रहा था पाकिस्तान। क्यों? कि पाकिस्तान की 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री उसके ऊपर कब्जा किए बैठी थी तोलोलिंग पर। उनका कमांडर था मेजर अनवर खान। बेटा वहां एक बोतल है पानी की, एक गिलास तेरे कने। वहां क्या कि मेरे गले में काफी देर बोलता हूं तो कुछ होता है। हाँ होता है। हाँ लिया बेटा। तो अब पानी बोतल ला रही हो, तुम क्यों देख रहे हो? और कुछ नहीं है, तुम सोच रहे हो भाई कुछ और है। गर्म पानी है। हाँ शाबाश बेटा। नहीं इसी मिला लूंगा, मेरा भी है। आओ लाइव चल रहा था, कहाँ दिमाग है? अरे बच्चों बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? बैंक BANK। कोई भी बताओ, खड़ा करो, हाथ खड़ा करो भाई। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? बताऊं आप शरीर में नहीं, खड़ा हाथ खड़ा करो जिसको पूरा यकीन है कि हिंदी में यो कहते हैं बैंक को। क्या हुआ? नहीं पता? मेरे को नहीं पता, कोई ने पूछ लेना 5-4 दिन। मैंने अभी बैठे बैठे अंकल से पूछा, सर ये बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? ऐसे दिमाग में बात आ गई। अब मुझे पता नहीं कि क्या कहते हैं हिंदी में। मेरा तो मैं ना खजाने का कमरा कहते होंगे और तो क्या कहते हैं? आप पता करना वाले, मेरे को फोन करके बताना। मेरे नंबर चाहिए आपको? लिखो 94,14,35,9930। नहीं है नंबर यही है, लेकिन गलत बोल रही हूँ। नंबर संख्या वही है 94,14,35,9930। 94,14,35,9930। डॉक्टर साहब ने पीडी भी कर लिया, देख लो।
94 14 35 99 30। और मैंने क्या कहा 94 करोड़ 14 लाख। ये देख 100 नंबर 93 100। डॉक्टर साहब के नंबर भी आगे मेरे पास में। अब तुम मजाक समझ रहे हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं साची में ही मेरी पूरी नहीं होती। झूठ बोलने का मेरे को क्या मतलब है? साची जितना काम करा उतना ही बता दी, वही खुश हूं मैं। 806 किसके हैं? चलो 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 मेरे बच्चों, कहां थे हम? कारगिल में। एक आदमी खड़े होके बताओ। हाँ, तोलोलिंग पे खड़े हो, इधर दौड़ के आता हो, मेरे करने आया यार। हाँ, कहाँ था? तोलोलिंग पे नहीं यार, तोलोलिंग भाई नहीं। सब्जेक्ट में ध्यान है इसका। शाबाश। ये मेडल है तेरे को, ये पूछी का मेडल दिया है तेरे को, मीठी का। मैंने इतना मेडल कोई नहीं दे सकता। सब अपने बच्चों में सबसे सुंदर बच्चे कौन होते हैं? कितना भी खराब शक्ल का हो, उसकी माँ को पूछो, उसको सबसे सुंदर वही लगेगा। होता है ना? लेकिन जो अच्छा काम करता है वो देश को सुंदर लगता है। जो बच्चा मेहनत करता है उसका रंग सबको दिखाई देता है, और जो डिफॉल्टर होता है उसको भी दिखाई देता है। लेकिन आज इस जमाने में गड़बड़ है डॉक्टर साहब कि अभी दिमाग में कुछ हो रहा है मेरे। मैं डायलॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूं अभी कि जमाना आया बेढंगा। जमाना भी है ना वो बेढंगा, इसका कोई ढंग नहीं है, तरतीब से नहीं है। जमाना बेढंगा, भगत आदमी दुख पाता है और करता है मौज लफंगा। जमाना है, अरे पाप के पश्चात कहीं नहीं पश्चाताप हुआ, कचहरी में जाकर के नहीं इंसाफ हुआ, क्योंकि मामा थानेदार डिप्टी साले का बाप हुआ, एमएलए पहले ही हुआ और मिनिस्टर खुद आप हुआ, होकर के लम्बरदार वो मजलूम तो चुपचाप हुआ, जिसके साथ हुई दंगा। और जमाना है बिल्कुल बेढंगा, भक्त आदमी दुख पाता है और करता है मौज लफंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो भगत आदमी होता है, शरीफ होता है, वो दुख पाता है। बाकी आज नाचने गाने वाले जितने हीरो है ना, अगर यहाँ कोई हीरोइन आ जाती ना, वह कौन सी नाम तो मैं जानता नहीं, जो कम सबसे कम कपड़े पहन के ने आयशा अकबर की फर्स्ट फौज पर फोटो आती है तो पूरी दुनिया देखती है उसको। लेकिन एक शहीद होता है ना, उसकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आओगी और वो भी लास्ट पेज में, उसको कोई नहीं देखता। ऐसा होता है ना, क्योंकि वो देश के लिए कुर्बानी दी है, उसको अखबार वाले नहीं छापते। क्यों? उनको टीआरपी चाहिए। अखबार और मीडिया है ना, ये सबसे बड़ा देश का गद्दार सिस्टम है मेरी नजर से। पूछो क्यों? क्योंकि प्रिंस नाम के लड़के को कौन कौन जानता? हाथ खड़ा करो। प्रिंस जो बोरवेल में गिरा था, जानते हो? लेकिन उसको काटने वाले को कोई जानता? हाथ खड़ा करो। 1 लाख रुपए इनाम दो। वो भी उसको बोर में से काटने वाला फौजी का नाम बताओ, कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो मेरी यूनिट के आदमी थे, मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारी फोटो वहां में मेरी यूनिट के जो फौजी थे उन्होंने बोला उस लड़के को उठाते ही मीडिया चेयरमैन फ्लैक्स। और हम तो भाई बुरी हालत हो रही थी, भूखे मर रहे थे। हम तो जाके टेंट में बैठ के रोटी खाने लगे। इतनी देर में प्रिंस को तो उठा लेंगे लोग, उसको तो अमेरिका रूस जापान तक देख रहे हैं, लेकिन काटने वाले को कोई नहीं देखता। इसलिए नाचने गाने वाले जितने हीरो हीरो ना, वो कौन सा खान है, फलाना खान, बोले वो बहुत तगड़ा हीरो है, तो हम के गुण पर निकले आए इधर है। ये 13 लाख आर्मी क्या है? असली हीरो कौन है बच्चों?
आर्मी, ये है देश की। आज यहाँ सुरक्षित बैठे हैं तो बेटा 2.5 लाख फौजी, कोई बर्फ में, कोई डेजर्ट में, कोई कीचड़ में, कोई राइफल को लेके क्रॉलिंग चल रहा है, और कोई दुश्मन के ऊपर ताने बैठा हुआ है, और किसी का लग रही है, और कोई दर्द हो रहा है किसी को। 2.5 लाख फौजी, एक टाइम ड्यूटी चेंज होती है तो ही भारत माँ की रक्षा होती है। एडी से लेकर चोटी तक भारत माँ की रक्षा कौन करता है? सैनिक करता है बेटा। और आज देश का यूथ मोदी आने के बाद में थोड़ा जागा है कि फौजियों की इज्जत हो गई है। आज यहाँ भी शर्मा जी ने मेरे को बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया। क्यों? या तो ये हीरो हीरोइन को बुला सकते थे, लेकिन इनके दिल में कोई भावना थी नहीं, अपना असली हीरो दिगेंद्र को बुलाएंगे। तो आपने बुलाया, अरे आपको मुखड़ा देखने का मौका मिला। क्यों? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब वापिस -30 डिग्री में चलते हैं तोलोलिंग के ऊपर। तोलोलिंग, उसका क्या नाम है? तोलोलिंग। वो फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द कारगिल वार, जिसमें एक बटालियन के 18, एक के 22, एक के 28 शहीद हो चुके थे। और जनरल मलिक ने क्या किया? जनरल मलिक ने बोला कि हिंदुस्तान के 3 हमले पहली बार फैल हुए हैं, हमारे को ऐसी यूनिट चाहिए जो कभी हार का मुंह नहीं देखी। तो हमारी बटालियन का नाम था 2 राजरी। फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विजेता यूनिट का मैं सैनिक हूं, जिसने कभी हार का मुंह नहीं चखा आज तक। और 215 साल पुरानी यूनिट है हमारी, 215 साल पुरानी यूनिट है। और हमारी यूनिट के अंदर दादा, बेटा और पोता तीनों एक साथ लड़ाई लड़ी है। और एक माँ के 3 बेटे एक साथ लड़ाई लड़ी है। उस बटालियन का नाम है 2 राजरी, जिसके अंदर दिल्ली से, ये दिल्ली है, इसके 350 किलोमीटर इलाके के फौजी होते हैं। कितने किलोमीटर के होते हैं? 350 किलोमीटर का आता है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, राइट, यहीं के फौजी होते हैं। और वर्ल्ड के अंदर सबसे तगड़े और लड़ने वाले और दिमाग वाले फौजी दिल्ली के आसपास पाए जाते हैं। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं फौजियों के साथ रहा हूँ, फौजियों के साथ लड़ाई लड़ी है। हरियाणा, यूपी, एमपी, यहाँ का भी है, भिवाड़ी से थोड़ी दूर का भी एक फौजी मेरे साथ में कमांडो में था। तो वो बोलता है, गुरुजी दुश्मन कितनी देर में मरे? मुझे 1 सेकंड मार ले, मौका मिले तो, और नहीं तो मुझको 75 साल में ही नहीं मरिया दुश्मन। तो क्यों नहीं मरिया? कमांडर ठीक नहीं थे। ठीक है ना बच्चों? तो उस तोलोलिंग के ऊपर जनरल मलिक ने ऐसे दरबार लिया। दरबार लेने के बाद वो बोलता है कि भाई मुझे ऐसा कमांडर चाहिए जो इतने झंडे को इस तोलोलिंग पे फहरा दे। वॉलंटियर, मौत को वॉलंटियर कौन कहेगा? तो उनका मेजर अनवर खान था, वो ऊपर जब बोला या अली, अपने वाले बोले बोल बजरंग बली, सफरे शुरू। अब मेरे 9 साथियों ने उनके 30 आदमियों को खत्म कर दिया, लेकिन जो मेरे 9 साथी, इसको फर्स्ट एड किया मैंने, और वो गन ऐसे फायर कर रहे हैं, ऐसे रगड़ता जाऊं और नीचे जाऊं और लाडू की तरह अंदर ठोक दूं ग्रेनेड को, प्राण दे फटे, अल्लाह खुदा अम्मो को जा। आगे मैंने क्या बोला आप समझ गए होंगे, अल्लाह खुदा हमको जा। तो वो ऐसे करते करते सुबह तक दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए। कितने? अब वो मेजर अनवर खान मुझे ऊपर बैठे बैठे गाली काटा, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल। मैं क्या कुत्ता हूँ? बोलना चाहिए, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। उसके बाद 15 अगस्त को मुझे महावीर चक्र दिया गया और आज मैं जिंदा हूँ। आपका सौभाग्य। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। ऐसे वीर कभी नहीं मर सकते। थैंक यू सो मच सर। एक बार पुनः हमारे रियल हीरो नायक दिगेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। आकाश से वायु बनी, वायु से उत्पन्न हुई अग्नि, अग्नि से बना जल और जल से पोषित हुई पृथ्वी।
इन पंच महाभूतों में पृथ्वी तत्व असीम सहनशीलता का द्योतक है। ऊष्मा का प्रतीक अग्नि तत्व विचार शक्ति में सहायक बनता है। वायु तत्व मानसिक शक्ति तथा स्मरण शक्ति की क्षमता व ताकत को पोषण प्रदान करता है और आकाश अनंतता का प्रतीक शरीर में आवश्यक संतुलन बनाए रखता है। जब तक इन पंच तत्वों का संचालन पूर्ण सामंजस्य व समन्वय से होता है, तब तक सृष्टि व मानव जीवन संतुलित होकर निर्बाध गति से चलता है। पंच तत्वों को ब्रह्मांड में व्याप्त लौकिक एवं अलौकिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कारण और परिणति माना गया है। This is believed that when one dies, their body gets blessed with these elements. अब हम सब मिलकर इस सृष्टि के मूल कारण इन पंच तत्वों को विभिन्न नृत्यों द्वारा और गहराई से जानेंगे। जल्दी ले लो भाई फोटो। हाँ, वो जल्दी ले भाई, इतना बाद है।